Hello students, today we are doing NCERT in textual question answer of page 118 and this is class 9 of chapter force and laws of motion. So now we are start and this is our question number 1 students. See what the question number 1 is saying to us: which of the following has more inertia? A rubber ball and a stone of same size, a bicycle and a train, a 5 rupee coin and a 1 rupee coin. Student, this is question number 1 and here we have to tell which is having more inertia. Okay, so now we know the students that the inertia depend on the mass. So try to solve this question, all the parts. So this is the solution. Now we have to solve it, students. But the we know that, students, see the answer number 1. We know that inertia of any body is directly proportional to mass of that body. That is, you can say inertia is depend on the mass. Okay, so they are interlinked with each other. So in first part, what we have to compare, we are having a rubber ball and a stone. So we know that mass of stone is greater than the mass of rubber ball, and according to this concept, if the mass is greater then inertia is also greater. If mass is lesser, then inertia is also lesser. So here you can say the mass of the stone is greater. Okay, so the inertia of stone is greater than the inertia of rubber ball. Okay, I hope this is clear. Now the B part, in the B part we are having a train and a bicycle. So we know that the mass of a train is greater than the mass of a bicycle. So according to this concept, we know that who is having more mass, then it is also having more inertia. So inertia of train is greater than the inertia of bicycle. Okay, and this is our third part, and this is saying we are having two coins, that is, one is coin of 5 rupees. So mass of 5 rupees coin is greater than the mass of 1 rupees coin, because the mass of the 5 rupees coin is greater. So we can say the mass of 5 rupees coin is greater. So the inertia of is also greater. The inertia is also greater. So inertia of 5 rupees coin is greater than the inertia of 1 rupees coin. So this is the question number 1 solution. Okay, now we are doing question number 2. This is our question number 2, students, and the question number 2 is saying to us, in the following example, try to identify number of times the velocity of the ball change. आपको ये बताना है स्टूडेंट्स कि इसमें कितनी बार जो बॉल की स्पीड है, बॉल की जो वेलोसिटी है, वो चेंज हो रही है. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. So what the question is saying to us? Question is saying to us, there are two football players. This is the first player and this is the second player. First player is kick the football towards him. So this is the first time when the velocity is changed. So in this case, the velocity is changed by first player kicking. So when the first player is kick the football towards the second player, then we can say here the velocity is changed. Okay, and the force is applied by here by the first player. When he kicked the football, then we can say that the force is applied by the first player. Now in the second case, or you can say second time, in the second time the second football player kicked the football. In the second case, the football player, that is the second, kicked the football towards the goal. See students, suppose this is goal. ओके, इन सेकेंड केस वी कैन से दैट, सेकेंड केस में क्या हो रहा है बेटा, ये जो फुटबॉल सेकेंड वाला फुटबॉल प्लेयर है, ये बॉल की तरफ, जो गोल है हमारा, उसकी तरफ बॉल को क्या कर रहा है, किक कर रहा है. सपोज दिस इज अवर गोल. सो यहाँ पे वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है बेटा, यहाँ पे ये जब इसको किक कर रहा है गोल की तरफ, तो यहाँ पे क्या आ रही है, आपकी वेलोसिटी चेंज आ रही है. सो यू कैन से द वेलोसिटी ऑफ फुटबॉल चेंज फॉर द सेकेंड टाइम व्हेन द अनदर प्लेयर, और यू कैन से सेकेंड प्लेयर of same team kick the football towards the goal. So another player here, another कब change हो रही है, when the another player, this player kick football towards the goal.
ओके, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है और यहाँ पे बेटा देखो आपको दिखाई भी दे रहा है फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है. सो फोर्स इज अप्लाइड बाय किक ऑफ अनदर प्लेयर, अप्लाइड बाय किक ऑफ अनदर प्लेयर. जो सेकेंड प्लेयर है हमारा उसके द्वारा क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है. नाउ द थर्ड केस, सपोज हेयर इज गोल कीपर स्टैंड हेयर, गोल कीपर इज स्टैंड हेयर. ओके, तो यहाँ पे गोल कीपर खड़ा था, उसने क्या कर लिया, बॉल को कलेक्ट कर लिया. क्या कर लिया उसने, बॉल को कलेक्ट कर लिया. ठीक है, तो थर्ड टाइम यहाँ पे वेलोसिटी चेंज, तो वेलोसिटी ऑफ फुटबॉल चेंज फॉर थर्ड टाइम व्हेन द गोल कीपर ऑफ अपोजिट टीम कलेक्ट द फुटबॉल. कब हुई बेटा, व्हेन द गोल कीपर कलेक्ट बॉल. ठीक है, जब उसने बॉल को कलेक्ट कर लिया. और यहाँ पे फोर्स कैसे चेंज हुआ बेटा, जो हमारा फोर्स चेंज हो रहा है यहाँ पे फोर्स किसने सप्लाई करा है, तो फोर्स इज सप्लाई बाय द हैंड ऑफ गोल कीपर, बिकॉज उसने उसको पकड़ा है ना, तो हैंड ऑफ गोल कीपर, उसने वो क्या है यहाँ पे फोर्स का एजेंट है. उसने फोर्स को मतलब एक तरीके से फोर्स अप्लाई किया, तभी उसने उस बॉल को कैच किया है. ठीक है, नाउ द फोर्थ केस. फोर्थ केस में क्या हो रहा है बेटा हमारा, फोर्थ केस में देखो क्या हो रहा है. फोर्थ केस में ये क्या करेगा, यहाँ पे कोई अनदर प्लेयर खड़ा है और वो बॉल को किक करेगा इस साइड, फोर्थ प्लेयर के केस में. ठीक है, तो दिस इज अवर थर्ड केस एंड दिस इज अवर फोर्थ केस. तो फोर्थ केस में हमारे वेलोसिटी चेंज कैसे हो रही है, फोर्थ केस में हमारी वेलोसिटी ऑफ फुटबॉल चेंज फॉर द फोर्थ टाइम व्हेन द गोल कीपर किक द स्टेशनरी फुटबॉल टुवर्ड्स ए प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम. ओके, सो वेलोसिटी चेंज व्हेन गोल कीपर किक फुटबॉल. ठीक है, फुटबॉल को क्या कर रहा है, किक कर रहा है टुवर्ड्स हिज ओन टीम प्लेयर. ओके, जब वो अपनी टीम के प्लेयर के साइड बॉल को किक कर रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, वेलोसिटी चेंज हो रही है. और फोर्स यहाँ पे कैसे हो रहा है, फोर्स अप्लाई बाय किक ऑफ गोल कीपर. ठीक है, फोर्स कैसे सप्लाई हो रहा है, किक ऑफ गोल कीपर. जो गोल कीपर का किक है वो कौन क्या सप्लाई कर रहा है बेटा, फोर्स अप्लाई कर रहा है. ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आंसर नंबर 2. नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 3. सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग टू अस, एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ लीव्स may get detached from a tree if we vigorously shake its branch. Why do you fall in the forward? Okay, sorry. So बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको एक्सप्लेन करना है कि कुछ लीव्स जो होती हैं पेड़ की, जब हम पेड़ की टहनी को हिलाते हैं ज़ोर से तो कुछ पत्तियां है ना नीचे गिर जाती है, तो क्यों गिर जाती है वही हमें सोल्व करना है. दिस इज अवर आंसर नंबर 3. सपोज स्टूडेंट्स वी आर हैविंग ए ट्री, दिस इज ए ट्री एंड हियर इज ए मैन. Okay, and this is the hand of a man and he shaking it vigorously. ठीक है, he shaking it vigorously. वो इसको क्या कर रहा है, हिला रहा है. तो बेटा जब ये इस पेड़ को हिला रहा है, सपोज करो ये हमारी पेड़ की कोई भी एक ब्रांच है. ठीक है, ये पेड़ की क्या है, कोई एक ब्रांच है, उसको वो हिला रहा है. ठीक है, हमने किसी पेड़ की एक ब्रांच को कंसीडर कर लिया, उस पर छोटी छोटी क्या लगी हुई, लीव्स लगी, और उस पेड़ को वो अपने हाथों से हिला रहा है. ओके, ठीक है, तो जब वो इस पेड़ को हिला रहा है ना बेटा, जब इस पेड़ को क्या कर रहा है, विगरसली हिला रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, तो ब्रांच ऑफ ट्री. तो ब्रांच ऑफ जो ट्री है ना, जो ट्री की ये ब्रांच है, जो ये ट्री की क्या है, ब्रांच है, ये तो किस में है, रेस्ट में. सॉरी, जब ये इसको हिलाएगा अपने हाथ से तो ये तो किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी. और जो लीव्स है ना, ये किस में रहेंगी, रेस्ट में. किसकी वजह से, ड्यू टू इनर्शिया. ओके, ड्यू टू इनर्शिया. सो लीव्स तो जब इस ब्रांच को विगरसली शेक करेगा तो ये जो आपका है ब्रांच है, ब्रांच तो किस में आ जाएगी, हमारी जो पेड़ की ब्रांच है वो तो किस में आ जाएगी, मोशन में. बट जो उसकी लीव्स हैं वो किस में रहेंगी, रेस्ट में. दिस इज द रीजन स्टूडेंट्स, इफ वी शेक ब्रांच ऑफ ट्री देन द ब्रांच ऑफ ट्री कम्स इन मोशन. ओके, बट ड्यू टू the rest state of leaves, the rest states of leaves, or you can say that students due to inertia also, that is inertia of
rest. Okay, that is due to inertia of rest. So we can say the leaves fell from the tree. Okay, so जो leaves होंगी वो क्या हो जाएंगी, detached from the tree. Clear? So this is the reason. Now we are doing question number 4. This is question number 4, students. Why do you fall in the forward direction when a moving bus brakes to stop and fall backward when it accelerates from rest? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप आगे के डायरेक्शन में क्यों फॉरवर्ड होते हो जब कोई भी गाड़ी मतलब रुकती है, एकदम से ब्रेक लगते हैं, ओके, जब वो एक्सेलरेट करती है फ्रॉम द रेस्ट. तो नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. Number 4. What the question is saying to us: why do you fall in the forward direction when a moving bus brake to stop or fall backward when it accelerates from rest? See students, here are two cases. Suppose this is a bus, okay, and a person is standing here. A person is standing in the bus, and suppose a bus is also here and a person is also at here. Okay, ठीक है. So in the first case, it is saying we are fall in the forward direction. So in this case जो बस है वो क्या कर रही है बेटा, मूव कर रही है. ठीक है, बस इज मूविंग. ओके, और इसमें बस हमारी क्या है बेटा, रेस्ट में. क्लियर? इसमें हमारी बस क्या कर रही है, मूव कर रही है. सो ये क्या कह रहा है, जब हमारी बस कंटिन्यू क्या कर रही है, मूव कर रही है, और अगर मूव करने के बाद एकदम से हमारी बस में क्या अप्लाई हो जाते हैं, ब्रेक. अगर एकदम से आपकी बस में ड्राइवर ब्रेक अप्लाई कर रहा है तो उसके बाद क्या कह रहा है कि जो हमारा एक पैसेंजर यहाँ पे बैठा हो, जो ट्रैवलर यहाँ पे बैठा हो, वो क्या करता है, फैल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. वो यहाँ ना होके आगे की तरफ चला जाता है इधर. ये इसकी ओरिजिनल कंडीशन थी लेकिन वो यहाँ चला गया. तो ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स? लिसन, ये जो हमारी बस है तो ये जो इसका लोअर पार्ट है, जो लोअर पार्ट है वो किसके कॉन्टैक्ट में है, बस के कॉन्टैक्ट में. जब हम बस में मूव करते हैं, जब हम बस में क्या करते हैं, मूव करते हैं स्टूडेंट्स, सो तो हमारी जो बस की स्पीड होती है वही हमारी स्पीड हो जाती है. ओके, द स्पीड ऑफ द मैन इज इक्वल एज द बस. ओके, सो वैन जब एकदम से बस में हम ब्रेक अप्लाई करते हैं और जब हम रेस्ट में आ जाते हैं, ठीक है, जब हम बस पे ब्रेक अप्लाई करते हैं और हम रेस्ट में आ जाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है बेटा, जो हमारा लोअर पार्ट है वो तो किस में रहता है, जो हमारा लोअर पार्ट है वो तो किस में रहेगा, कंटिन्यू मोशन में रहेगा. बट जो आपका अपर हाफ है, जो हमारा अपर हाफ है वो किस में आ जाता है, वो किस सॉरी जो हमारा लोअर हाफ है वो तो एकदम से रेस्ट में आ जाएगा क्योंकि उसने क्या कर दिया, एकदम से ब्रेक अप्लाई कर दिया. और अपर हाफ किस में रहेगा, हमारा अभी भी मोशन में ही है. तो आप एक तरीके से क्या कह सकते हो कि ये वाला पार्ट तो मोशन में फील कर रहा है और ये वाला पार्ट रेस्ट में आ गया है. इस वजह से क्या होता है, ये वाला पार्ट तो क्या समझ रहा है कि मैं अभी आगे ही चल रहा हूँ, लेकिन ये पार्ट एकदम से रेस्ट में आ चुका है, इसलिए हम क्या कर देते हैं, आगे की तरफ बैंड हो जाते हैं. ठीक है, सो वी फॉल इन द बैकवर्ड बिकॉज द लोअर पार्ट ऑफ आवर बॉडी कम टू स्टॉप एंड द अपर पार्ट ऑफ आवर बॉडी कंटिन्यू टू मूव. सो दिस इज द रीजन. ओके, वी कैन राइट इट थ्योरेटिकली ऑल्सो. द लोअर पार्ट come to stop and upper part is continuing motion. Okay, so this is the reason students that we fall forward in a moving bus. Okay, I hope this is clear to you. Now we are doing the second part. Okay, in the second part students, the bus is at rest. It means we can say that if bus is the rest, then upper part and lower part both are at rest. But जब बस क्या करती है, मूव करना शुरू कर देती है. बस ने अब क्या शुरू कर दिया, एकदम से मूव. जब गाड़ी चलेगी बेटा, तो जब गाड़ी चलेगी ना उस टाइम पे क्या हो जाएगा, जो हमारा लोअर पार्ट है ना वो तो किस में आ गया, एकदम से मोशन में आ गया. बट जो अपर पार्ट है वो अभी भी किस में है, रेस्ट में है बेटा. तो ये जो बंदा है आपका, ये तो किस में आ गया, मोशन में, और ये अभी भी किस में, रेस्ट में. तो ये तो यहीं रहेगा ना, और ये पार्ट क्या हो जाएगा, आगे निकल जाएगा. इस वजह से हम क्या चले जाते हैं, पीछे चले जाते हैं. ठीक है बेटा, तो दिस इज द रीजन. अब इसको हम थ्योरेटिकली लिख देते हैं. क्या कह रहा है बेटा ये, कि जब कोई भी बस एक्सेलरेट करती है फ्रॉम रेस्ट, वी टेंड टू फॉल बैकवर्ड बिकॉज द लोअर पार्ट ऑफ आवर बॉडी स्टार्ट मूविंग सिंस लोअर
part of our body start moving and upper part is at rest. That's why we fell backward. That is, this is due to inertia, due to its inertia. Okay, now this is clear to you. Now we are doing the question number 5. This is question number 5, students, and this question is saying to us, if action is always equal to the reaction, explain how a horse can pull a cart. इसमें बेटा क्या बता रहा है कि हम न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ते हैं कि एक्शन हमेशा एक रिएक्शन के इक्वल होता है, तो एक हॉर्स है वो कार्ट को कैसे पुल कर सकता है, ये हमें स्टडी करना। सुनाओ, चलो इसको सोल्व करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 you start. This is our question number 5 and the question is saying if action is always equal to reaction, then explain how a horse can pull a cart. Suppose students, this is a cart, and here suppose this is a horse. My drawing is not so good, so don't go me. Okay, so when the horse is moving in this direction, horse is moving in forward direction and cart is moving according to Newton third law. जो न्यूटन LM थर्ड लॉ है वो क्या कहता है बेटा, हमें न्यूटन थर्ड लॉ कहता है if there is action then there is must be reaction. ओके, इफ द हॉर्स इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, हॉर्स किधर मूव कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये किधर मूव कर रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये तो क्या है, हमारा फॉरवर्ड फोर्स अप्लाई हो गया यहाँ पे। ये क्या कौन सा है, मूविंग फोर्स, जो इसको मूव करने के लिए पॉसिबल कर रहा है। और यहाँ पे अपोजिट में कौन सा लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, जो क्या कर रहा है, मोशन को, ये क्या करता है, मोशन को अपोज कर रहा है। अब ये बताओ, ये बॉडी है, ये रेस्ट में कब तक रहेगी बेटा, ये तब तक रहेगी जब तक फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल है, मूविंग फोर्स के। ठीक है, यू कैन से द फ्रिक्शन फोर्स इज अप्लाई बाय द कार्ट एंड द मूविंग फोर्स इज अप्लाई बाय द हॉर्स। तो जब तक ये दोनों इक्वल है तब तक बॉडी किस में, रेस्ट में। अगर सपोज करो जो मूविंग फोर्स है वो क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए एज कम्पेयर टू फ्रिक्शन फोर्स ऑफ कार्ट। ठीक है, अगर ये फोर्स बड़ा हो जाएगा तो अंडरस्टूड सी बात है कि ये बॉडी क्या करना शुरू कर देगी, मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है, ये बॉडी क्या करना शुरू कर देगी, मूव करना शुरू कर देगी। तो दिस इज द रीजन बेटा। सो वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन वी कैन से हॉर्स exert some force on the cart and the cart exert some force on the horse, but the forces are in the opposite direction. So we can say the action and reaction force are equal and opposite, so they cancel out each other and the body is at rest in that case. तो पहले केस में बॉडी रेस्ट में रहेगी, but we can say बट ओनली द फोर्स ऑन द कार्ट विच डिटरमाइन वेदर द कार्ट। तो हम क्या कह रहे हैं, जो सिर्फ कार्ट का फोर्स है ना वही हमें बता सकता है कि बॉडी मूव कर रही है या नहीं कर रही है। ओके, अब हम क्या करेंगे, तो फोर्स एबल टू अप्लाई फोर्स, अगर फोर्स इस पे हॉर्स अप्लाई कर देता है, सो वी कैन से दैट इफ फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय फ्रिक्शनल फोर्स is lesser than the moving force of force, then the car will move. ओके बेटा, तो ये क्या कह रहा है, अगर फोर्स इस फोर्स को ओवरकम कर जाए, इस फोर्स से ज़्यादा हो जाए फोर्स का फोर्स, तो ये गाड़ी क्या करना शुरू कर देगी, मूव करना शुरू कर देगी। एंड द वी कैन से दैट द फॉरवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन द बैकवर्ड फोर्स। सो दिस इज द रीजन। आई होप दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। नाउ वी आर डूइंग द क्वेश्चन नंबर 6. एक्सप्लेन why it is difficult for a fireman to hold a hose which eject large amount of water at a high velocity. देखो बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको एक्सप्लेन करना है कि फायरमैन के लिए होज को होल्ड करना मुश्किल क्यों हो जाता है जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर को हाई वेलोसिटी के साथ आउट करता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आंसर नंबर 5. ओके, सपोज दिस इज ए fireman who hold a hose. Okay, suppose this is the hose hold by him. This is a fireman and he hold a hose. ये क्या है, फायरमैन है, और ये क्या है, इसके पास होज है, और होज में से क्या हो रहा है बेटा, वाटर निकल रहा है। क्या निकल रहा है, वाटर, और वेलोसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है।
हाई वेलोसिटी के साथ वाटर आउट हो रहा है। तो जो वाटर है बेटा वो किस साइड फोर्स लगा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और जो होज है वो जो मैन है वो किस साइड डायरेक्शन लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एक तो बैकवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है, एक यहाँ पे फॉरवर्ड फोर्स लग रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। कौन सी लॉज ऑफ मोशन यहाँ पे अप्लाई करेगी, थर्ड, विच इज सेइंग एक्शन इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन। ठीक है, ये क्या कहता है कि जो एक्शन है वो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होगा किसके, रिएक्शन की। तो वी कैन से व्हेन ए फायर होज पाइप इजेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, जब यहाँ से बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी निकलेगा बेटा एट ए हाई वेलोसिटी, देन वी कैन से फॉरवर्ड गोइंग स्ट्रीम ऑफ वाटर एक्सर्ट ए बैकवर्ड रिएक्शन फोर्स। तो जो आगे की तरफ पानी जा रहा है बेटा वो पीछे की तरफ भी एक फोर्स अप्लाई करेगा, ड्यू टू विच द होज पाइप टाइम टू गो बैकवर्ड। ठीक है, और जो होज पाइप है, जो अपना ये होज पाइप है वो क्या करेगा, बैकवर्ड जाने की कोशिश करेगा। जो अपना होज पाइप है वो क्या करेगा, बैकवर्ड जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, और पानी आगे जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, और जो होज है ये फायरमैन के हैंड से स्लिप होना शुरू हो जाएगा। तो दिस बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ होज पाइप मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर a fireman to hold the hose pipe, and the fireman has to hold the hose pipe strongly. Okay, so you can say that when the high velocity water stream exert backward reaction due to which hose pipe tend to go backward, hose pipe tend to go backward. Okay, and it become difficult for a fireman, and that's why he hold it पर स्ट्रॉन्गली। सो वो उसको क्या करेगा, होल्ड करेगा स्ट्रॉन्गली। ओके, नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एंड दिस क्वेश्चन इज सेइंग टू अस, वी आर ऑन पेज 126 एंड द क्वेश्चन इज सेइंग फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास ऑफ 4 kg ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो हमें निकालनी है इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। बेटा हमारे पास एक राइफल है जिसका मास 4 kg है। ठीक है, बुलेट है 50 ग्राम की, वो फायर्ड हो रही है विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या निकालनी है, इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है। सो स्टूडेंट दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, नाउ वी हैव टू सॉल्व व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग टू अस। हमारे पास एक राइफल है, सपोज करो ये हमारे पास एक राइफल है। ठीक है, राइफल का मास कितना है बेटा, 4 kg। कितना मास है बेटा, 4 kg। और सपोज करो ये इसमें से कोई बुलेट निकल रही है। ठीक है, ये बुलेट है, ये क्या हमारे पास बुलेट है, और जो बुलेट है उसका मास है बेटा 50 ग्राम। ठीक है, बुलेट का मास कितना है, 50 ग्राम। और जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है बेटा बुलेट की जो वेलोसिटी है VB, दिस इज 35 मीटर पर सेकेंड। और बेटा जब बुलेट निकलती है, जब बुलेट बाहर जाती है, तो उस टाइम पे जो इस पिस्टल पे, जो इस राइफल पे जो बैकवर्ड फोर्स लगता है ना बेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी। और जब भी हम इस तरीके का कोई क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हम लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम क्या लगाते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हम इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं और फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा दिस इज द, तो ये इसका मास हो गया राइफल का। ठीक है, दिस इज द मास ऑफ द बुलेट। ये किसका मास है बेटा, बुलेट का। और ये किसका मास है बेटा, राइफल का। तो जो राइफल की वेलोसिटी है वो हमें क्या करनी है बेटा, फाइंड आउट करनी है। बिकॉज जो राइफल पे अपोजिट डायरेक्शन में जो वेलोसिटी अप्लाई हो रही है उसी को हम बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी, और वही हमें क्या करनी है बेटा, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो हम इसमें क्या करेंगे बेटा, मोमेंटम ऑफ बुलेट निकालेंगे, फिर मोमेंटम ऑफ राइफल निकालेंगे, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन हम उन दोनों को क्या कर देंगे, बोलेंगे अपोजिट। ठीक है, सो समझ आ गया बेटा आपको ये। अब हम इसको कंपेयर करते हैं। सो बेटा हमारे पास क्या है, एक बुलेट राइफल है और एक हमारे पास क्या है, बुलेट है। ठीक है, राइफल का मास कितना है बेटा, राइफल का मास हमारे पास है 4 kg। बुलेट का मास कितना है बेटा, 50 ग्राम। ठीक है, और मास ऑफ द वेलोसिटी ऑफ राइफल हमें क्या करनी है,
फाइंड आउट करनी है। और वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमारे पास कितनी है बेटा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमारे पास है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमारे पास है 35 मीटर पर सेकेंड। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। और ये लॉ क्या कहती है, ये लॉ कहती है मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मास ऑफ राइफल इंटू वेलोसिटी ऑफ राइफल। तो ये हमें प्रूव करेंगे। तो मास ऑफ बुलेट कितना हमारे पास है बेटा, तो मास ऑफ बुलेट हमारे पास, अब आप देखो 1 किलोग्राम में, तो किलोग्राम में चेंज करें तो 50/1000 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 1/20 किलोग्राम, ठीक है। सो मास ऑफ बुलेट हम, तो मास ऑफ बुलेट हम इसमें क्या कर देंगे बेटा, मास ऑफ बुलेट जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो मास ऑफ बुलेट हमारे पास कितना है बेटा 1/20, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है बेटा 35, और मास ऑफ राइफल कितना है बेटा 4, और ये हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। सो जब इसको आप सोल्व करोगे तो इस 4 को हम इधर ले आएंगे, ठीक है, इस 4 को हम क्या करेंगे इधर ले आएंगे बेटा, ओके। तो इसको इधर लेके आएंगे तो 1/20 इंटू 35 इंटू 1/4 इज इक्वल टू VR। अब इसको सोल्व करो, 5 4 जा 20, 5 5 जा 35, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 5/16, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा VR इज इक्वल टू 5/16, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास VR आ जाएगा 0.4375 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द रिकॉल वेलोसिटी ऑफ द रिक्वायर्ड राइफल, ठीक है बेटा। नाउ वी आर डूइंग द क्वेश्चन नंबर 8 एंड वी आर ऑन पेज नंबर 126 बेटा। So this is the last question of the in-textual question. So this is, now we have to question number 8. What the question number 8 is saying to us students? This is question number 8, and two object of mass 100 gram and 200 gram. Okay, two object of mass 100 gram and 200 gram are moving along the same line and direction with velocity. Okay, two object of मास 100 ग्राम एंड 200 ग्राम वो सेम सिस्टम पे मूव कर रहे हैं, डायरेक्शन उनकी वेलोसिटी है 2 और 1 मीटर पर सेकेंड है। सो दे आर कोलाइडिंग आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव एट ए वेलोसिटी ऑफ 1.67 मीटर पर सेकेंड एंड वी हैव टू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, ओके। द ऑब्जेक्ट ऑफ मास, suppose this is the mass, this is the object 1 and this is the object 2, okay, and the mass of this object is 100 gram, and suppose this is M1 and the mass of this object is 200 gram, okay. Velocity of that before collision, velocity 2 meter per second, and this is the velocity, this is before collision, so say this is U1 and this is the velocity, suppose this is U2 and the velocity is here 1 meter per second. So ये क्या कह रहा है, कुछ टाइम के बाद द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव एट ए वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद क्या होगा, तो दिस इज कोलिजन, कोलिजन के बाद क्या होगा कि ऑब्जेक्ट का मास तो वही रहेगा 100 ग्राम एंड 200 ग्राम, बट जो ये क्या कह रहा है कि जो वेलोसिटी है ना वो चेंज हो गई है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो कितनी हो गई है, इसकी वेलोसिटी तो हो गई है 1.67 मीटर पर सेकेंड, ओके, और इसकी वेलोसिटी हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो वी नो दैट, वही हम कंसेप्ट सेम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यही सेम कंसेप्ट हमें यूज करना है बेटा। ये क्या कहता है M1, फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, ओके। ये हमारा क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है। सो M1 U1 दिस इज 100, ओके। तो अब आप ये बताओ बेटा, ये हमारा किस में है, ग्राम में है, तो इसको अगर हम किलोग्राम में चेंज करें तो 1000 आ जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी कितनी है बेटा हमारे पास 2 प्लस में,
200 को फिर से उसमें किलोग्राम में चेंज करेंगे 1000 आ जाएगा। इनटू में वेलोसिटी कितनी है 1 m1 v1। तो आफ्टर कोलिजन बेटा हमारी जो वेलोसिटी है वो कितनी है बेटा 100, फिर से चेंज करेंगे 1000, इनटू में वेलोसिटी कितनी है बेटा 1.67 प्लस मास कितना है बेटा 200/1000, और ये हमें वेलोसिटी क्या करनी है बेटा फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप देखो चारों तरफ 1000 है तो कट हो जाएंगे, कॉमन लेंगे एलसीएम वगैरह लेंगे तो 1000 तो क्या हो गया हमारे कट हो गए। तो हमारे पास कितना बचा बेटा, हमारे पास बचा 200 + 200 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, जब 1.67 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा 167 प्लस में 200 v2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बेटा 400, इधर आएगा तो -167 इज इक्वल टू 200 v2। और ये इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे 400 में से 167 को, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा भाई, जब 400 में से 167 को आप माइनस करोगे बेटा, तो आप इसको करो 400 को 160 में से माइनस, तो 400 माइनस 167 ये आपके पास आ जाएगा 233, और अपॉन में 200 इज इक्वल टू v। तो 233 को हम क्या करेंगे बेटा 200 से डिवाइड करेंगे, तो जब इसको हम 200 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1.165 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी दैट वी वांट टू फाइंड आउट। ठीक है, सो दिस इज द part in which we are doing NCERT in textual question answer of page 126 and 118. So I hope this is very helpful for you students. So thank you so much. This is constructive physics. Thanks a lot.